students, welcome back to Abhigyan Academy. In today's video lecture, we will be discussing an important part of ancient Indian history. See, we study about many kingdoms like the Mauryan Empire, the Gupta Empire, but fact is, most of their reign was dominated towards the northern and the central part of the country, or maybe a little bit towards the southwestern part. But in southern India, there were many other kingdoms who were dominant in that region. So in today's lecture, we will be discussing about the South Indian kingdoms. Okay? Let's go one by one. Let's see the kingdoms and what they were about. So the first dynasty or kingdom in the South India is the Pallavas. Okay? Now, Pallavas are also known as the Pallavas of Kanchi or the Pallavas of Kanchipuram. Why? Because the Pallava kingdom had their capital in the place Kanchipuram. Okay? And the first ruler of this dynasty was Sinha Vishnu or Simha Vishnu. Okay? Other than that, some important rulers of this kingdom are Mahendravarman I, Narsimhavarman I, and Narsimhavarman II. I have given a table here of the titles that the kings have had assumed. होता है ना कि राजा, महाराजा, धीराजा, ये जो बड़े बड़े टाइटल्स लेते हैं राजा लोग, इन राजाओं ने क्या क्या टाइटल्स लिया था. फॉर एग्जाम्पल महेंद्रवर्मन I, he took up titles like चित्रचित्त, मत्त विलासा, चित्रकरपुली, टेटकरी. चेट्टकरी का मतलब होता है बिल्डर ऑफ टेम्पल्स. इससे हमें ये पता चलता है कि महेंद्र वर्मन I ने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे. He got many temples built. कांचीपुरम में जो मंदिर वगैरह है, lot of them have been built by महेंद्र वर्मन I, and that is why respectfully he is known as Chettakari, which means the builder of temples. He is also known as Gunabhara and Satyasandha. ठीक है. Narsimhavarman I was known as Mamalla. Mamalla means a great wrestler. See, Narsimhavarman I was a very stout and strong man, and he was very good at wrestling, hand-to-hand combat, and that is why he was known as Mamalla. He is also known as Vatapikonda. Okay? Why Vatapikonda? Because the place Vatapi or Badami, which is the place of the Chalukyas, Narsimhavarman I had conquered this place. That is why his called as. We'll look into it. Now, Narsimhavarman II, he took up titles like Rajasimha, Shankara Bhakta. Now, Shankara Bhakta नाम से पता चलता है he was a devotee of Shankara or Lord Shiva. ठीक है. Then Vadhya Vidyadhara, Agama Priya. These are certain titles taken up by Narsimhavarman II. So now let's look at the Pallavas in detail. Pallavas इस province में आए कब? Pallavas के पहले this province was ruled by the Cholas. ठीक है. After the Cholas, the Pallavas came into this province. And the first ruler, as I said, the first ruler, Pallava dynasty का पहला राजा was Sinha Vishnu. Sinha Vishnu के बाद the next king was the son of Sinha Vishnu. Sinha Vishnu को succeed किया उसके बेटे ने. His son was Mahendravarman I. ठीक है. Mahendravarman I ने पहला रॉक कट टेम्पल बनाया था अपने टाइम के दौरान. रॉक कट टेम्पल मतलब एक पत्थर होगा, उस एक पत्थर को काट के उसमें कार्विंग्स करके उस पत्थर को काट के उस पत्थर में से एक मतलब एक बड़ा सा पत्थर होगा, उस बड़े से पत्थर को काट के उसको एक मंदिर का शेप देके उससे मंदिर बनाना. So that was the first rock cut temple that was built during his time. ठीक है. He also composed the Mahavilas Prasanna and the Vichitra Chitta. ठीक है. These are some literary works. Mahavilas Prasanna and Vichitra Chitta, these are literary works. They were composed by Mahendravarman I himself. अब इनकी मौत कैसे हुई? He died in the Battle of Pulalur. ठीक है. हुआ ये कि चालुक्य डायनेस्टी के जो पुलकेशिन II थे, पुलकेशिन II was the king of the चालुक्य डायनेस्टी. चालुक्य और पल्लवास के बीच में युद्ध हुआ, बैटल हुआ. ठीक है. द बैटल टुक प्लेस एट अ प्लेस कॉल्ड पुल्ललुर, द बैटल ऑफ पुल्ललुर. और उस जगह में चालुक्यास की जीत हो गई. द पल्लवास लॉस्ट. पुलकेशिन II won the battle, and in the battle Mahendravarman I lost his life. ठीक है. अब इनका कैपिटल कहाँ था? As I said before, the capital of the Pallavas was situated in कांचीपुरम. ठीक है. और जो पूरा पेनिनसुलर रीजन है वहां पे, पेनिनसुलर रीजन मतलब
जो इंडिया का नीचे का टिप है ना, जैसा ट्रायंगल जैसा टिप निकला हुआ है कि तीनों साइड में पानी है और ऊपर के साइड लैंड है, वो उस रीजन को पेनिनसुलर रीजन बोला जाता है। तो दैट पेनिनसुलर रीजन वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय द पल्लव डायनेस्टी, द पल्लवा किंग। नाउ द ग्रेटेस्ट रूलर, पल्लवा डायनेस्टी के सबसे महान राजा, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज नरसिम्हा वर्मन वन। ठीक है, ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर। व्हाई? पुलकेशिन टू चालुक्य डायनेस्टी के, इन्होंने हराया था पल्लवास को और महेंद्र वर्मन वन को मारा था बैटल में। नरसिम्हा वर्मन वन ने इन रिटर्न चालुक्यास के कैपिटल सिटी, द कैपिटल सिटी ऑफ चालुक्यास वाज वाटापी, या फिर उसको बादामी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वाटापी पे नरसिम्हा वर्मन वन ने हमला किया, ही अटैक्ड इट, ही डिफीटेड द चालुक्यास एंड ही किल्ड पुलकेशिन टू, ही टुक द रिवेंज। ठीक है, इनको महाबली या ममल्ला भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि he was a very strong man, he was very good at wrestling and hand to hand combat, and he also founded महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का जो जगह है, this was founded by नरसिम्हा वर्मन वन। ठीक है, now let's look at महेंद्र वर्मन as a ruler himself। ठीक है, महेंद्र वर्मन के पिताजी सिंह विष्णु, he founded the Pallava dynasty, he founded the Pallava empire, he was later succeeded by his son was महेंद्र वर्मन। ठीक है, अब महेंद्र वर्मन was a very good poet, एक बहुत अच्छे कवि थे, एंड इन्होंने दो कविताएं, दो दो पोएट्री के वर्क्स कंपोज किए थे। वन इज विचित्र चित्त एंड द अदर वन इज महाविलास प्रसन्न। तो दिस शोज दैट महेंद्र वर्मन वन वाज नॉट जस्ट a normal king, he was also very good at literature, which is why he became a good poet। And then Saint Par and scholar Bharavi, these are two people of his contemporary time, both of them were patronized by him, like he used to respect them a lot and he used to promote their works at a very higher level। देन बहुत सारे केव टेम्पल्स बनाए हैं इन्होंने, लाइक केव में द रॉक्स दैट आर देयर इन द केव, द रॉक्स आर कट इन द शेप ऑफ अ टेम्पल, द केव इज कट, इट इज डेकोरेटेड इन द शेप ऑफ अ टेम्पल, एंड देन वी गेट केव टेम्पल्स। सो ही बिल्ट मेनी केव टेम्पल्स। ठीक है, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड चेट्टाकरी, मींस द बिल्डर ऑफ टेम्पल्स, बिकॉज़ उन्होंने मंदिर बहुत सारे बनवाए। ठीक है, मंडगपट्टू में एक इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, उस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि विचित्र चित्त, विचित्र चित्त इज द अदर नेम महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन को विचित्र चित्त बोल के भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि विचित्र चित्त ने एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, दैट टेम्पल वाज मेड फॉर ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, द त्रिदेव ऑफ हिंदुइज्म, द थ्री मेन गॉड्स, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। फॉर देम ही बिल्ट अ टेम्पल, एंड ही बिल्ट द टेम्पल विदाउट यूजिंग एनी ब्रिक्स, टिम्बर और मेटल। मतलब अलग से ईट, लोहा, स्टील कुछ नहीं यूज किया, सीधा सीधा पत्थर काट के गुफा में मंदिर बना दिया उन्होंने। द इंजीनियरिंग वाज सो गुड। ठीक है, कुडुमिया मलाई बोल के एक जगह है, वहां पे एक म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन है, उस म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन में भी इनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, एंड महेंद्र वर्मन वन शुरू में एक जैन थे, he was a follower of Jainism, later on he converted to Shaivism। now Shaivism is a branch of Hinduism only which primarily believes in Lord Shiva as the supreme god। ठीक है, एंड इनकी राइवलरी थी चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन टू के साथ, जैसा पहले कहा मैंने। पुलकेशिन टू वाज द किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, महेंद्र वर्मन वन हैड अ वेरी बिग राइवलरी विद हिम, देयर वाज अ बैटल एंड इन द बैटल महेंद्र वर्मन डाइड। ठीक है, बट महेंद्र वर्मन वाज अ वेरी गुड रूलर, ही वाज अ वेरी एफिशिएंट रूलर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूलर नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, नाउ नरसिम्हा वर्मन वाज द सन ऑफ महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन के बेटे थे नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन वन। और नरसिम्हा वर्मन सक्सीडेड महेंद्र वर्मन की जब मौत हो गई युद्ध में चालुक्यों के साथ, उसके बाद नरसिम्हा वर्मन सक्सीडेड हिम, ही बिकेम द नेक्स्ट किंग ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। ठीक है, अब नरसिम्हा वर्मन को सबसे महान राजा माना जाता है पल्लव डायनेस्टी का। ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, so he is also known as नरसिम्हा वर्मन महामल्ल या ममल्ल। अब ये उनको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड रेसलर एंड ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉरियर।
दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड महामल्ल और ममल्ल। इन्होंने अपने पिताजी का बदला ले लिया। इन द ईयर 1642 एडी he attacked the the capital of the Chalukyas. Their capital was Vatapi. He attacked the capital of the Chalukyas. There he defeated Pulkeshin II and killed Pulkeshin II, and it took control of their capital. The capital was Vatapi. And since इन्होंने वटापी को कॉन्कर कर लिया, इसीलिए उन्हें वटापी कोंडा भी बोला जाता है। ठीक है। अब मणिमंगलम बोल के एक जगह है, ये कांचीपुरम के पास ही है। तो he had a victory of Manimangalam में there was a battle, and at the battle of Manimangalam he achieved the victory, ठीक है, near कांचीपुरम, ठीक है। and this thing is mentioned in some copper plates, जो कुरम कॉपर प्लेट्स है, उन कॉपर प्लेट्स में जो इंस्क्रिप्शन किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मणिमंगलम में हुए युद्ध में नरसिम्हा वर्मन had gotten victory, ठीक है। उसके साथ साथ जो बाकी के साउथ इंडियन किंगडम्स थे, द चोलास, चेरास, पांड्यास, इन सबको इन्होंने हरा दिया। He defeated all of them, ठीक है। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका, अब हुआ क्या था, श्रीलंका सिन्हाला, श्रीलंका को पहले सिन्हाला बोलते थे, ठीक है, इसलिए श्रीलंका का जो प्राइमरी मेजोरिटी लैंग्वेज है वो सिन्हालीज है, ठीक है। तो सिन्हाला यानी श्रीलंका में जो प्रिंस थे मणिवर्मा, ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज थ्रोन, ठीक है। एंड टू हेल्प हिम नरसिम्हा वर्मन had sent a naval expedition, उन्होंने अपनी नेवी भेजी थी श्रीलंका, and the navy went there and the navy helped the Sinhalese prince, Sinhalese मतलब जो श्रीलंकन प्रिंस थे मणिवर्मा, उसको हेल्प किया टू वापस टू गेट reinstated to the throne, to get his place back. Then ममल्लपुरम, उसका आप उसको महाबलीपुरम कहते हैं, महाबलीपुरम जो शहर है, जो सिटी है, इट वाज फाउंडेड बाय नरसिम्हा वर्मन ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, ठीक है। और वहां पे जो मोनोलिथिक रथ्स है, मोनोलिथिक रथ मतलब मोनोलिथ, लिथ मीन्स स्टोन, मोनो मीन्स वन, मोनोलिथिक रथ मीन्स एक सिंगल स्टोन को काट कूट के उसमें कार्विंग करके उसको एक रथ के शेप में बनाया। रथ मीन्स अ चैरियट। तो वहां पे जो रथ है, दे हैव बीन मेड बाय हिम ओनली। ह्यूनसांग, ही विजिटेड इंडिया इन 640 एडी, ठीक है। तो ह्यूनसांग जब इंडिया आया 640 एडी में, ही सॉ द पल्लवा किंगडम, और उसने अपने अकाउंट में मेंशन किया कि यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, द किंगडम इज वेरी प्रॉस्परस, एंड यहाँ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अबंडेंट है, मतलब एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है। नाउ महेंद्र वर्मन वन के जो बेटे हैं, महेंद्र वर्मन टू, ही सक्सीडेड महेंद्र वर्मन, सॉरी नरसिम्हा वर्मन वन के जो बेटे हैं महेंद्र वर्मन टू, ही सक्सीडेड नरसिम्हा वर्मन वन। नरसिम्हा वर्मन वन के जाने के बाद इन द ईयर 1668 एडी उनके जो बेटे हैं महेंद्र वर्मन टू, वो राजा बन गए। नाउ लेट्स लुक एट नरसिम्हा वर्मन टू। महेंद्र वर्मन टू के बाद जो नेक्स्ट राजा थे, ही वाज नरसिम्हा वर्मन टू। नरसिम्हा वर्मन टू को राजसिंह भी कहा जाता है, ठीक है, ये उनका एक टाइटल है। अब राजसिंह यानी नरसिम्हा वर्मन टू के कोर्ट में एक पोएट थे, द नेम ऑफ द पोएट वाज गांधी, ठीक है। एंड नरसिम्हा वर्मन टू ने यानी राजसिम्हा ने चाइना में बहुत सारे एम्बेसीज भेजे, मतलब अपने बहुत सारे दूत, अपने बहुत सारे लाइक डिप्लोमेट्स उन्होंने चाइना भेजे हैं टू मेंटेन गुड रिलेशंस। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द पल्लवा डायनेस्टी। जो पूरा पल्लवा किंगडम था, द होल स्टेट, ठीक है, द होल किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स कॉल्ड कोत्तम्स। जैसे हमारा पूरा देश स्टेट्स में डिवाइडेड है, जो पल्लवा स्टेट था, जो पल्लवा राज्य था, दैट राज्य वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट वाज नोन एज अ कोत्तम, ठीक है। और हर कोत्तम का, हर रीजन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था। दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यूज्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द किंग, द किंग यूज्ड टू अपॉइंट द ऑफिसर फॉर ईच कोत्तम, ठीक है। और मंदिरों को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। लैंड ग्रांट्स मतलब जमीन दान में दिया जाता था मंदिरों को। एंड ये जो लैंड ग्रांट्स है, दिस लैंड ग्रांट्स वर नोन एज देवदान, मतलब देवता को दान देना, भगवान को दान देना, ठीक है। ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, यानी ब्राह्मणों को जमीन दान में दिया जाता था। दिस वाज नोन एज ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव मतलब ब्राह्मण को कुछ देना, ठीक है। प्लस महेंद्रवड़ी और ममंदूर बोल के दो जगह है, यहाँ पे इरिगेशन टैंक्स बनाए गए थे,
इसी से देखो इरिगेशन टैंक्स बनाने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा था, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ही अच्छा था, उसी की वजह से इस एरिया का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छा है ना, जो ह्यूनसांग ने बोला भी है। तो महेंद्र वर्मन वन ने अपने टाइम पे इन जगहों पे इरिगेशन टैंक्स बनाए, ठीक है। और देखो जब भी कोई चीज दान होती है आज के जमाने में भी, इफ यू गिव समथिंग, इफ यू मेक अ ट्रांजैक्शन, आपको टैक्स देना पड़ता है उस पे, उस टाइम भी वो था। लेकिन अगर कोई ब्रह्म देय कर रहा है, यानी ब्राह्मण को जमीन दान दे रहा है, या फिर देव दान कर रहा है, यानी मंदिर को जमीन दान दे रहा है, देन दोस ट्रांजैक्शंस वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। मतलब अगर ये सब दान करते हुए तुमने जमीन दी, तुम्हारे जमीन से कोई भी टैक्स, कोई पोर्शन नहीं कटेगा, ठीक है। और जो पल्लवा इंस्क्रिप्शन है, पल्लवास के टाइम पे जो लिखा हुआ चीज है, उससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे विलेज असेंबलीज हुआ करती थी, मतलब पंचायत टाइप, you know, village assemblies to make decisions, and these assemblies were known as sabhas. Now let's look at the art and architecture. उस टाइम का आर्किटेक्चर कैसा था? पल्लवास द्रविडियन स्टाइल टेम्पल बनाते थे। द्रविडियन स्टाइल टेम्पल मतलब जो तिरुपति टेम्पल हो गया, ठीक है, या फिर जो महाबलेश्वर टेम्पल हो गया आपका, या साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं, ठीक है, दैट स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग इज नोन एज द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो पल्लवास के टाइम पे ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब द्रविडियन स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है, ये 4 स्टेजेस में डेवलप हुआ है, एक बार में डेवलप नहीं हुआ, एंड दिस डेवलपमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द एज ऑफ द पल्लवास। अब पल्लवास ने रॉक कट टेम्पल्स बनाए। रॉक कट मतलब एक सिंगल पत्थर को काट के उसमें से मंदिर बनाया है, ठीक है। ये रॉक कट टेम्पल्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले शुरू किया था महेंद्र वर्मन वन ने। एग्जाम्पल्स है मंदगपट्टू, महेंद्रवड़ी, ममंदूर, दलवनूर, वल्लभ, इन जगहों पे आपको रॉक कट टेम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे मंदिर जो एक सिंगल पत्थर को काट के उसमें से बनाए गए, ठीक है, अलग से कोई ईट वीट कुछ नहीं यूज हुआ है उसमें। उसके बाद जो मोनोलिथिक रथ है, मोनोलिथिक रथ मतलब एक सिंगल पत्थर को काट के उसमें से रथ का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। ये किसने किया था? दिस वर्क वाज डन बाय नरसिम्हा वर्मन वन, एंड ये स्ट्रक्चर्स तुम्हें महाबलीपुरम में मिलेंगे, ठीक है। वहां पे पंच पांडव रथ बोल के एक चीज है, ठीक है, जिसमें 5 पांडवों के लिए 5, महाभारत में 5 पांडव थे ना, तो 5 पांडवों के लिए 5 रथ 5 अलग अलग पत्थरों से काट के बनाए गए, ठीक है। तो उससे एक अच्छा टेम्पल का आर्किटेक्चर स्टाइल दिखता है, ठीक है। उसके साथ साथ मंडप को इंट्रोड्यूस किया गया। मंडप क्या होता है? मंडप एक ऐसा जगह होता है जहां पे वॉल्स में स्क्रिप्चर्स लिखे हुए रहते हैं, देयर आर अकाउंट्स एंड यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड कि उस टाइम हुआ क्या। अब हुआ क्या, राजसिम्हा, नरसिम्हा वर्मन टू, नरसिम्हा वर्मन टू के आते आते टेम्पल्स का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया उस डायनेस्टी। नरसिम्हा वर्मन टू या राजसिम्हा वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड टेम्पल्स बनाते थे, ठीक है। he used to do, the temples were made using both soft and hard rocks, ठीक है। महाबलीपुरम में जो शोर टेम्पल है, जो एक प्रॉपर टेम्पल है, दैट वाज बिल्ड बाय नरसिम्हा वर्मन टू। वो शोर टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसके साथ साथ कांची में जो कैलाशनाथ टेम्पल है, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पल्लव आर्किटेक्चर। कैलाशनाथ टेम्पल, शोर टेम्पल, फिर महाबलीपुरम में जो वो पंच पांडव रथ मंडप वगैरह बना हुआ है, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स या आर्किटेक्चर्स मेड बाय द पल्लवस। ये देखो, these are the temples, example of the temple structures of the temples that were made by Pallavas. अब ममल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में एक आर्ट गैलरी है, ठीक है, आर्ट गैलरी है। वहां पे डिसेंट ऑफ गंगा या फिर कीर्तर्जुनिया या फिर पेनेंस ऑफ अर्जुन, मतलब अर्जुन की तपस्या की एक पेंटिंग है, ठीक है, जो इस आर्ट गैलरी में प्रिजर्व, ठीक है। दिस पेंटिंग इज फ्रॉम द टाइम ऑफ द पल्लवास, पल्लवा पीरियड का पेंटिंग है, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो महाभारत के अर्जुन है वो बैठ के तपस्या करते हैं। ये एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इस पेंटिंग, ये जो पेंटिंग है ना, कि पत्थर पे पेंट करना, ठीक है, दिस टाइप ऑफ पेंटिंग इज नोन एज फ्रेस्को पेंटिंग। पत्थर पे पेंटिंग बनाना, इस स्टाइल को फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है।
फाइन आर्ट्स नाच गाना देखते हैं कैसा है। जो ममंदुर नाम के जगह पे जो इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें ये बोला गया है कि उस टाइम पे वोकल म्यूजिक था, वोकल म्यूजिक, गाना, गले से गाना गाना। फिर जो कुंदुमिनुमलाई इंस्क्रिप्शन है उसमें कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखा है और म्यूजिकल नोट्स भी लिखे हुए हैं। जो म्यूजिक के नोट्स होते हैं, सुर होता है, वो सब लिखा हुआ है। फिर सित्तनवसल पेंटिंग है, वो पेंटिंग भी इसी पीरियड का है। सित्तनवंसल पेंटिंग ये पल्लवा पीरियड का पेंटिंग है, ठीक है। और दक्षिण चित्र बोल के कमेंट्री है। इट्स लाइक, कमेंट्री मीन्स इट्स लाइक एन अकाउंट, इट्स लाइक अ कमेंट ऑन समथिंग कि उस टाइम कैसे क्या था, कैसे क्या होना, लाइक इट्स लाइक अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो दक्षिण चित्र एक डिस्क्रिप्शन टाइप का कमेंट्री है। वो कब बना था? इट वाज मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महेंद्र वर्मन। तो ये पल्लवा डायनेस्टी था। पल्लवा डायनेस्टी के बाद नाउ लेट्स कम टू द चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि चालुक्य डायनेस्टी ना एक सिंगल डायनेस्टी नहीं, तीन अलग अलग चालुक्य डायनेस्टीज। देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट चालुक्य डायनेस्टीज, देयर आर थ्री ऑफ देम। वन इज द बादामी चालुक्यास या द चालुक्यस ऑफ बादामी, ठीक है। ये सबसे पहले पुराने वाले चालुक्य डायनेस्टी के लोग हैं, ठीक है। और इनका कैपिटल था बादामी में, जिसका दूसरा नाम था वटापी। ये एरिया कर्नाटक में पड़ता है। ये चालुक्यस ऑफ बादामी का जो रूल था, इनका जो राज्य था, ये शुरू हुआ था करीब करीब 6th सेंचुरी के बीच में से, मिड 6th सेंचुरी, ठीक है। एंड चालुक्यस के जो सबसे महान राजा थे पुलकेशिन टू, 642 एडी में ये नरसिम्हा वर्मन वॉर से हार गए और मर गए बैटल में। उसके बाद बादामी चालुक्यस का डिक्लाइन आना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? द अदर पार्ट ऑफ द चालुक्यन डायनेस्टी, उसको ईस्टर्न चालुक्यास बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पुलकेशिन टू के मौत के बाद ये लोग बहुत वीक हो गए एंड दे इमर्ज्ड आउट ऑफ इट। और जो डेक्कन रीजन है हमारा इंडिया में, डेक्कन रीजन का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये वहां पे वेंगी बोल के एक जगह पे इन्होंने अपना कैपिटल बनाया, ठीक है। एंड दे रूल्ड टिल अबाउट 11th सेंचुरी, ठीक है। फिर आता है वेस्टर्न चालुक्यस। वेस्टर्न चालुक्यस भी बादामी चालुक्यस से ही निकले हैं, बट ये भी अलग शाखा है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या देख, अब ईस्टर्न चालुक्यस 11th सेंचुरी में आए थे, वेस्टर्न चालुक्यस 10th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। और वेस्टर्न चालुक्यस का कैपिटल कल्याणी बोल के एक जगह पे, ठीक है। इन मॉडर्न डे द प्लेस इज नोन एज बसव कल्याण। तो मेन चालुक्य डायनेस्टी ये 6th सेंचुरी के टाइम था, जिसको चालुक्य ऑफ बादामी कहते हैं। इनका कैपिटल बादामी में था या वटापी में था, जो भी बुला लो। अब पुलकेशिन टू हार गए बैटल में नरसिम्हा वर्मन वन से और मर गए। उसके बाद ये लोग वीक हो गए। उसके बाद इससे एक ब्रांच निकल के आ गया और 11th सेंचुरी तक रूल किया डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न पार्ट पे, वेंगी बोल के एक जगह पे। दे आर द ईस्टर्न चालुक्यास। और एक और शाखा 10th सेंचुरी में निकल के आया, जो वेस्टर्न साइड में कल्याणी बोल के एक जगह पे जाके सेटल हो गया, वहां से रूल किया। दे वर द वेस्टर्न चालुक्यास। नाउ लेट्स लुक एट द चालुक्य डायनेस्टी। इसका फाउंडर कौन है? इट वाज फाउंडेड बाय जसिम्हा, जसिम्हा बोल के एक रूलर। एंड द फर्स्ट ग्रेट रूलर, मतलब पहले ऐसे रूलर जिनका थोड़ा नाम है इस डायनेस्टी में, दैट इज पुलकेशिन वन। बट जो सबसे महान राजा है, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इज पुलकेशिन टू, ठीक है। पुलकेशिन टू का ओरिजिनल नाम था इराया। और पुलकेशिन टू इतना पावरफुल था, उसने डेक्कन प्लेट्यू का जो पूरा अपर रीजन है उसको पूरा का पूरा कॉन्कर कर लिया। डेक्कन प्लेट्यू के पूरे अपर रीजन को कॉन्कर कर लिया। और सेंट्रल इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, मतलब एमपी के नीचे का जो एरिया है, सेंट्रल इंडिया के सदर्न पार्ट को भी इसने कॉन्कर कर लिया, ठीक है। कर्नाटका में एक इंस्क्रिप्शन है known as the eye hole inscription, and this eye hole inscription was written by a person called Ravi Kriti, ठीक है। ये संस्कृत में लिखा हुआ है और ये कन्नड़ स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन टू का मेंशन मिलता है। इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड सकुलत सकलुतर पथस्वर, ठीक है। अब सकलुतर पथेश्वर कहा जाता है कि इट इज रेफर टू हर्षवर्धन। सकलतु पथेश्वर जो नाम लिखा हुआ है, कहा जाता है कि दिस नेम इज रेफरिंग टू हर्षवर्धन, ठीक है।
तो इंस्क्रिप्शन में ये लिखा है कि हर्षवर्धन, जिसको इस नाम से मेंशन किया गया है, ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन टू। ठीक है। नर्मदा नदी जो बहती है मध्य प्रदेश से होके, नर्मदा नदी के तट पे ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा बैटल वाज फॉट। ठीक है। और उस युद्ध में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पल्लवा डायनेस्टी के महेंद्र वर्मन वन को हरा दिया था और उसको मार दिया था। ठीक है। बट बाद में जाके क्या हुआ, रिवेंज लेने नरसिम्हा वर्मन वन आ गए, महेंद्र वर्मन वन के बेटे। और आने के बाद पुलकेशिन टू से रिवेंज लिया, उसको मारा, चालुक्यास को हरा दिया, वटापी को कॉन्कर कर लिया। Now let's look at into more details of Pulkeshin II. As I said, Pulkeshin II ruled from 609 AD to 642 AD. He was the most powerful ruler of the Chalukya dynasty. ठीक है। जो पूरा का पूरा डेक्कन रीजन है, डेक्कन का जो पूरा अपर रीजन है, उसके अक्रॉस पूरा उसने चालुक्यस का रूल फैला दिया था, पूरा कॉन्कर कर लिया था उसने। ठीक है। एंड व्हेन पुलकेशिन II वाज बोर्न, उसका ओरिजिनल नाम एक्चुअली इराया था। ये हमें कहां से पता चलता है, वी गेट टू नो इट फ्रॉम आई होल इंस्क्रिप्शन। आई होल इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ पुलकेशिन टूज नेम वाज इराया। ठीक है। अब ये जो आई होल इंस्क्रिप्शन है, ये पुलकेशिन टू के कोर्ट पोएट ने लिखा है। हु वाज दिस कोर्ट पोएट? इट वाज अ पर्सन कॉल्ड रवि कृति। ठीक है। कन्नड़ा स्क्रिप्ट यूज करके उन्होंने संस्कृत में लिखा है। स्क्रिप्ट कन्नड़ा है बट द लैंग्वेज यूज्ड फॉर दिस इंस्क्रिप्शन इज संस्कृत। एंड दिस पर्सन रवि कृति, ही वाज अ जैन पर्सन। ठीक है। अब ह्यून सांग जब इंडिया में आया, ठीक है, ह्यून सांग इंडिया में आया तो इसने चालुक्य का किंगडम भी विजिट किया पल्लवास के साथ साथ। चालुक्य किंगडम विजिट करके उसने पुलकेशिन टू का बहुत तारीफ किया है। ह्यून सांग ने यह बोला कि पुलकेशिन टू एक बहुत ही जस्ट रूलर है, मतलब नेक रूलर है, एंड ही इज अ वेरी ऑथोरिटेटिव पर्सन, मींस ही हैज अ लॉट ऑफ अथॉरिटी, ही हैज अ लॉट ऑफ पावर। मतलब उसके आजू बाजू कुछ नहीं हो सकता, वो जो बोलता है वही होता है। एंड पुलकेशिन टू खुद हिंदू थे, बट ही वाज वेरी वेरी टॉलरेंट अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, कि मैं खुद हिंदू हूं बट आई विल इक्वली रेस्पेक्ट द बुद्धिस्ट आल्सो एंड द जैन्स आल्सो। ठीक है। और ये जो हर्षवर्धन है, जो नॉर्दर्न इंडिया में किंग थे, हर्षवर्धन क्या कर रहा था, हर्षवर्धन अपना पूरा का पूरा कॉन्क्वेस्ट चला रहा था इंडिया में, एंड ही वाज हेडिंग टुवर्ड्स साउदर्न इंडिया, ही वाज हेडिंग टुवर्ड्स साउदर्न इंडिया। बट जब वो नर्मदा नदी पे पहुंचा, तो नर्मदा नदी में ही हैड टू फेस पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हरा दिया, और हर्षवर्धन जो साउथ में घुसने वाला था उसको रोक दिया पुलकेशिन टू, उसको वापस जाना। ठीक है। पर्शिया से एक डिप्लोमेटिक मिशन आया था। ठीक है। उस डिप्लोमेटिक मिशन को भी पुलकेशिन टू ने रिसीव किया है। ठीक है। और एक पर्शियन राजा थे खुसरू टू, पुलकेशिन टू हैड वेरी गुड रिलेशंस विद। ठीक है। गंगा डायनेस्टी के रूलर दुर्विनीता, ठीक है, एक्सेप्टेड पुलकेशिन टूज ओवरलॉर्डशिप एंड गेव हिज डॉटर इन मैरिज। ये उस टाइम पे एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक टाई होता था कि मान लो एक वीक राजा है और एक स्ट्रॉन्ग राजा है, तो वीक राजा क्या करेगा, उसको लगेगा अरे भाई ये बंदा तो एक दिन मुझे कॉन्कर कर लेगा, तो डिप्लोमेसी कैसे करता था, अपनी बेटी की शादी उस राजा से करवा देता, सो दैट यू नो कि वो अब इन लॉ बन चुका है उसका, सो देयर विल बी गुड रिलेशंस, ही वोंट हैव टू वरी। तो यही किया है। दुर्विनीत बोल के जो गंगा डायनेस्टी के रूलर थे, इन्होंने अपनी बेटी की शादी पुलकेशिन टू से करवा ली, और पुलकेशिन टू को अपना लॉर्ड मान लिया। ठीक है। बट पुलकेशिन टू का जब मौत हुआ, ही डाइड इन द बैटल विद नरसिम्हा वर्मन वन। ठीक है। विद द पल्लवास। आफ्टर पुलकेशिन टू द चालुक्य डायनेस्टी डिक्लाइन लाइक हेल, द डायनेस्टी वेंट डाउन। अब चालुक्य डायनेस्टी का सोसाइटी देखते हैं। देखो, चालुक्य का मैरीटाइम पावर बहुत ज्यादा था। मैरीटाइम पावर मतलब दे हैड अ वेरी पावरफुल नेवी, दे हैड वेरी पावरफुल इक्विपमेंट्स एंड मैन एट सी। चालुक्य के नेवी में करीब करीब 100 जहाज थे, देयर वर 100 ships, and 100 ships in that period of time is a very very huge thing, and the army was also very well organized. अब चालुक्यास वर हिंदूस, चालुक्यास वर हिंदूस, दे वर वेरी staunch Hindus, सब के सब, but still they were very tolerant of Buddhism and Jainism. They did not respect anybody. चालुक्यस के टाइम पे जो तेलुगु लिटरेचर है और कन्नड़ लिटरेचर है, both the literatures had a very good development in the Chalukya period. और जो कॉइन्स थे, जो कॉइन्स बनते थे चालुक्यस के टाइम में, कॉइन्स में जो लिखा हुआ रहता है ना कुछ कुछ, चालुक्य कॉइन्स में जो भी लिखा हुआ रहता था वो नगरी या फिर कन्नड़ भाषा में लिखा रहता था। एंड कॉइन्स में इमेजेस किस किस चीज का होता था, जैसे हमारे कॉइन में अशोक
चक्रवाल, सॉरी, हमारे कॉइन में वो सरनाथ लायन बना हुआ रहता है ना, इनके कॉइन पे क्या होता था, इनके कॉइन में मंदिर होते थे, लायन होता था, ठीक है, या फिर बोर होता था, ठीक है, फेसिंग राइट एंड द लोटस। बोर मतलब जो वाइल्ड बोर होता है, जो जंगली सुअर होता है जिसके दांत निकले रहते हैं, बोर होता था, और नहीं तो लोटस का फोटो होता था, ठीक है। Now, where did this lion and boar come from? See, they were worshippers of Vishnu. So, because of that, the boar basically represented the Varaha incarnation of Vishnu, and the lion represented the Narsimha avatar of Vishnu. So, the concept of the lion and the boar comes from there. Now, the art and architecture, ठीक है। चालुक्यस ने जो टेम्पल बनाए, देखो पल्लवास ने जो टेम्पल बनाए थे, दे वर द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स, बट चालुक्यस ने जो टेम्पल्स बनाए हैं, दोस टेम्पल्स वर वेसारा स्टाइल टेम्पल्स, ठीक है, दे वर वेसारा स्टाइल टेम्पल्स, ठीक है। इन टेम्पल्स को डेक्कन स्टाइल भी बोलते हैं, इनको कर्नाटका द्रविडियन स्टाइल भी बोलते हैं, इनको चालुक्यन स्टाइल भी बोला जाता है। नाउ जो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स बने हैं उसको नगरा स्टाइल टेम्पल कहते हैं, और जो साउथ इंडिया में टेम्पल्स बने हैं उसको द्रविडियन स्टाइल टेम्पल बोलते हैं। बट चालुक्य जो टेम्पल बनाते थे दैट वाज वेसारा स्टाइल। वेसारा स्टाइल यानी ना ही ये पूरा का पूरा द्रविडियन स्टाइल था, और ना ही ये पूरा का पूरा नगरा स्टाइल था, इट वाज समथिंग इन बिटवीन, ठीक है, इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। अब आईहोल, बदामी एंड पत्तदकल, इन जगहों पे चालुक्य के बनाए हुए मंदिर है। इन शहरों में, इन जगहों में चालुक्य के बनाए मंदिर आपको दिखेंगे, ठीक है। अगेन ये जो केव टेम्पल का कॉन्सेप्ट है कि गुफा के अंदर गुफा काट के मंदिर बनाना, ये चालुक्यों ने भी किया है, इट्स नॉट जस्ट द पल्लवास, ठीक है। और चालुक्य के टाइम पे ये बहुत फेमस था। तो इलोरा, नासिक और अजंता में जो गुफाओं में मंदिर है, मेनी ऑफ दोस टेम्पल्स वेर बिल्ट बाय द चालुक्यस, ठीक है। अब अजंता में एक पेंटिंग भी बना हुआ है, लाइक एक प्रॉपर डिपिक्शन है। ये जो पर्शिया से एक बार मिशन आया था, बोला था ना मैंने कि पर्शिया से एक डिप्लोमेट आया था जिसको पुलकेशिन II ने रिसीव किया, दैट होल इंसिडेंट is made like a, like you know, it's depicted in the form of a painting in as an image in the Ajanta caves. Ajanta cave में जाओगे तो ये देखने को मिलेगा। अब चालुक्य ने जो मंदिर बनाया है उसको हम दो स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। उसका जो पहला स्टेज है, ठीक है, वो आईहोल में बना है, और जो दूसरा स्टेज है वो बदामी में बना, ठीक है। अब देखो आई आईहोल में टोटल 70 टेम्पल्स हैं जो चालुक्यों ने बनाया है, उस 70 में से 4 है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट वन इज द लातखंड टेम्पल, ठीक है, ये एक लो टेम्पल है। लो मतलब थोड़ा नीचे है जमीन में, फ्लैट रूफ है, मतलब ऊपर जो मंदिर का ऐसा होता है ये नहीं है, रूफ छत फ्लैट है उसका, ठीक है। एंड इट हैज अ पिलर्ड हॉल, मतलब जो मंदिर के अंदर का हॉल है उसके अंदर बहुत सारे पिलर्स है, खंबे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक दुर्गा टेम्पल बनाया है, बट उस दुर्गा टेम्पल का शेप जो बुद्धिस्ट चैत्य होते हैं ना, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती थी, ठीक है, जो स्तूपा होते थे, जो बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल्स होते थे, उस तो इससे में पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि हिंदू रूलर है, हिंदू देवी का मंदिर बना रहा है, बट स्टिल ही इज टॉलरेट टू बुद्धिज्म, इसीलिए मंदिर का स्ट्रक्चर उसने एक बुद्धिस्ट टेम्पल जैसा बनाया, ठीक है। देन द हुची मलीगुरी टेम्पल, ये एक और है, और मेगुटी में एक जैन टेम्पल भी बनाया है, यानी देखो हिंदू राजा है फिर भी जैनों के लिए मंदिर बनाया है। दिस शोज दैट इवन दो चालुक्यास वर हिंदूज, दे वर वेरी मच टॉलरेंट टुवर्ड्स जैन्स एंड बुद्धिस्ट। अब बदामी में इंपॉर्टेंट मंदिर कौन से है, मुक्तेश्वर टेम्पल, ठीक है, एंड द मेलगुटी शिवालय। शिवालय एंड मुक्तेश्वर मतलब किसका मंदिर है ये, दीज आर टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो इससे पता चलता है दैट चालुक्यास वेर वेरी आर्डेंट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। देन पत्तदकल में जो विरूपाक्ष टेम्पल है और जो संगमेश्वर मंदिर है, ये दो मंदिर द्रविडियन स्टाइल में बने, इट इज नॉट मेड इन वेसारा स्टाइल। विरूपाक्ष मंदिर और संगमेश्वर ये द्रविडियन स्टाइल में बने, ठीक है। संगमेश्वर भगवान शिव का मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर। और पापनाथ टेम्पल बोल के एक और टेम्पल है, जो पापनाथ टेम्पल है, ये पापनाथ टेम्पल अगेन ये वेसारा स्टाइल में नहीं बनाया है, पापनाथ टेम्पल को नगरा स्टाइल में बनाया गया है नॉर्थ इंडिया जैसे, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखो, बाकी सब वेसारा स्टाइल टेम्पल्स। ये देखो दीज आर सी
इट्स अ पिलर्ड हॉल। मंदिर के अंदर का जो हॉल है इसमें पिलर्स बने हुए, इट्स अ पिलर्ड हॉल। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर ध्यान से देखोगे इसको, ये प्रॉपरली एक नगरा स्टाइल टेम्पल भी नहीं है, ये एक प्रॉपर द्रविडियन स्टाइल टेम्पल भी नहीं, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, इट्स अ विसारा टेम्पल।